is Aditi, and if you're seeing me for the first time, then I make videos on skincare, makeup and lifestyle. And this is a makeup, by the way. Yeah. So for today's video, I did this Indian wedding guest makeup look for you guys, where I did green smoking eyes with nude lips, and I'm wearing this choli from my lehenga and the same dupatta. I'm not wearing the lehenga because it's too hot in Noida right now, so pardon me for that. Also, I'm wearing this jhumka from a local market, and I'm finishing the look with a bindi. So if you guys want to see how I achieved this look, keep on watching the video. Also, before moving to the video and stopping the bug, I would like to add, if you like the video guys, please hit the like button. Comment if you want me to do any other video. I would be happy to do that. And also don't forget to subscribe to my channel. It will mean the world to me. Also, if you can also press the bell icon down there, down there, yeah. If you also can press the bell icon down there, you will get notified whenever I post a new video. So I think that's a good thing. Yeah, so without and now stopping the bug, and let's get into the video. To start off the makeup, I'm using this rose water on my face with the help of a cotton pad to make sure that my face has no dirt, nothing sort of any makeup left, so that I can have a clear and fresh skin to start. नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड 02, और मैं इस कंसीलर को अपने आई लिड पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. मुझे अपना एक क्लियर कैनवस चाहिए जिसमें मैं काम कर सकूँ. मेकअप आर्टिस्ट इज ऑल्सो एन आर्ट, मेकअप इज ऑल्सो एन आर्ट. सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है दैट आपका कैनवस हमेशा क्लियर हो, सो दैट आपके कलर्स निखर के आए. So I'm just trying to do that. I'm blending it with the help of a I'm blending it with the help of a brush. ये ब्रश मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है गाइज. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. बहुत ही अच्छा ब्रश है. ये 4 के सेट में आते हैं. I'll try to link it in the description box for you. Next, I am doing my eyebrows using Wet n Wild का eyebrow powder का जो palette है. I'm using that. And now I'm just concealing my eyebrows to make sure that कोई भी sharp edges, कोई harsh edges नहीं है. अच्छे से मेरे defined eyebrows लग रहे हैं, because eyebrows are a very big deal when you're doing a classy makeup look, or if you're going to a wedding or something. Eyebrows हमेशा point पे होने चाहिए. So next I'm using this Maybelline का Fit Me Loose Powder. I'm the shade Light Medium, and मैं इस पाउडर की हेल्प से अपने जो कंसीलर मैंने लगाया है उसको थोड़ा मैटिंगफाइंग इफेक्ट दे रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंसीलर पे कुछ पाउडर लगाएं, वरना आपका जो आई शेडो है वो क्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 1-2 घंटे के अंदर ही. एंड मेरी बहुत ऑयली स्किन है, सो मुझे तो बहुत ज़रूरी होता है लगाना. अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कलर क्रेयॉन आईलाइनर. सो दिस इज़ लाइक अ आईलाइनर क्रेयॉन जो बहुत ही प्यारा शेड है, और ग्रीन कलर का शेड है. बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है आपके आईलेट्स पे. सो मैं उसको अपने पूरे लिड एरिया पे लगा रही हूँ, मेरे क्रीज लाइन तक. ये मेरे आई शेडो का बेस में हेल्प करेगा मुझे. मैं उसका बेस क्रिएट कर रही हूँ. Yeah, so after that I will be using this Wet n Wild's eyeshadow kit. मैं इसका डार्क ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, और मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इसको एज अ वी बना के थोड़ा स्मच कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ. दिस विल हेल्प मी टू सेट अप अ बेस फॉर द स्मोकी इफेक्ट, बिकॉज स्मोकी आइज के लिए हमेशा आपको 2 कलर्स के ट्रांजिशन चाहिए होते हैं. सो मैं जस्ट इसको एक लिटिल बिट ट्रांजिशन देने की कोशिश कर रही हूँ. मैं इसको डार्क करूँगी लेटर ऑन विद अ डार्कर शेड. बस इसमें मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन कर रही हूँ, एंड सेम मैं दूसरे आई में भी करूँगी. अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, सो दैट वो कलर डिपॉजिट एक जगह पे ना हो, बट पूरे लिड पे अच्छे से हो जाए द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन.
अब मैं ये डार्क का ग्रीन शेड ले रही हूँ गाइस। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने नीचे जो ग्रीन कलर लगाया है क्रीम बेस पे, ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि लाइक जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छे से ना सेटल हो रहा है मेरे लिड पे, बिकॉज मैट कलर है, बहुत आसानी से सेटल नहीं होता अगर आपके नीचे कोई बेस नहीं है तो। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अचीव हियर। आई वांटेड समथिंग विच इज़ यू नो लाइक द कलर शुड बी देयर एंड इट शुड लुक ब्राइट एंड नाइस। सो दैट्स द रीज़न मैं नीचे बेस यूज़ किया था। एंड मैं सेम दूसरे आइज पे भी कर रही हूँ। द कलर डिपॉजिट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। यू कैन ऑल्सो ट्राई द सेम यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेस। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है, आपके पास सिल्वर है, वाइट है, आप कुछ भी कलर ले सकते हो। किसी कलर का भी आप लाइक लुक कर रहे हो तो आप उसके नीचे ट्राई करो कि सिमिलर मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आप ब्लैक भी कर सकते हो। अब मैं थोड़ा डार्कर कलर का ब्राउन ले रही हूँ। मैंने आपको कहा था मैं स्मोकी इफेक्ट दूंगी, सो मैं उसके लिए एक डार्कर कलर का ब्राउन ले रही हूँ। मैं उनकी जो एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और उसको अपने यू नो अपर क्रीज लाइन पे लेके जा रही हूँ, सो दैट जो स्मोकी आइज का लुक है बहुत अच्छा है। अब मैं एक ग्रीन कलर ले रही हूँ पैलेट से, बहुत अच्छा सा शिमरी ग्लिटरी कलर है एंड लुक एट दैट गाइस, सच अ गॉर्जियस कलर। सो मैं इसी कलर को अपनी हैंड फिंगर की मदद से मैं अपनी इन कॉर्नर आइज पे लगा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं कट क्रीज करूँगी, बट आई थॉट जब ये कलर इतना अच्छे से निकल के आया तो आई थॉट नहीं लेट्स यू नो जस्ट गो विद दिस, बिकॉज जितना सिंपल होगा आप लोगों के लिए उतना ईजी होगा इसको रिक्रिएट करना। एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू यू नो गेट कन्फ्यूज एनी वेयर, सो प्लीज जस्ट फॉलो वॉट आई एम डूइंग, यू विल बी एबल टू अचीव द सेम लुक। सो मैं अपने फिंगर की हेल्प से दूसरी आइज पे भी लगा रही हूँ अनटिल एंड लाइक अभी तक तो मुझे अपना लुक बहुत प्यारा लग रहा है। इसका आउटर जो यू नो आउटकम है वो भी बहुत प्यारा लगेगा। सो या आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। अब मैं उसी ब्रश को ले रही हूँ, मैंने कोई कलर नहीं लिया है, मैं उसी ब्रश को ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो शार्प एजेस मैंने भी ग्रीन लगाया है उससे थोड़ी सी क्रिएट हो गई थी, तो मैं बस सबको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, सॉफ्ट कर रही हूँ ताकि यू नो कहीं पे कोई शार्प एजेस ना रहे। सो आर लुक इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट, द आई लुक इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। मैं अब ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लेके अपने ब्राउ बोन पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब फोटोग्राफी वगैरह आप करते हो तो उसमें बहुत अच्छा से इफेक्ट आता है। ना मैंने लैशेस पहन लिए हैं ऑफलाइन, बहुत मेहनत लगती है लैशेस पहनने में, तो मैंने जल्दी पहन लिए। फॉर फेस मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन, बहुत अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है। 2 पम्प्स आई टेक, 2 पम्प मेरे लिए बहुत होते हैं मेरे फेस और नेक के लिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ले सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा फाउंडेशन लेना चाहिए और उसकी कवरेज बिल्डअप करो। सो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी, बिकॉज मोस्ट पीपल यू नो डोंट डू दिस, वो अपने नेक को भूल जाते हैं या करते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट येस इफ़ यू गोइंग आउट और अगर पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि आप अपने नेक को भी कवर करो। मैं ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल ब्लेंडर है ये। ब्लू हेवन का यू नो ब्लेंडर है, 150 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग है एंड इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है, आपके मेकअप को फ्लॉलेस लगता है। सो यू कैन यू नो श्योरली गिव इट अ ट्राई, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई हैव यूज पैक का भी अर्लियर, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सस्ता भी है, तो या वाई नॉट। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, इसका शेड भी आई थिंक लाइट मीडियम है और मैं इसको अपने यू नो अपनी अंडर आइज पे अप्लाई कर रही हूँ, अपना ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई कर रही हूँ, लिटिल बिट ऑन फोरहेड, चिन पे, अपर लिप पे, द यूजुअल एरियाज गाइज वेयर एवर यू वांट टू हाईलाइट। मुझे अपने लोअर चीक्स पे हाईलाइट करना बहुत पसंद है, लाइक आई डू द मेकअप दिस वे। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द कंसीलर नाउ, अच्छे से उसको वो ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करो। सो गाइज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे ना कि ऑल द स्टेप्स आई डू आई ओनली यूज ब्लेंडर, आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ ब्रशेस ऑन माई फेस। ब्रशेस मैं सिर्फ कॉन्टोर या ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ एंड बेस करने के लिए आई ऑलवेज यूज़ माई ब्लेंडर। एंड मैं पाउडर भी अपने ब्लेंडर से लगाऊंगी। मैं अच्छे से बेक कर रही हूँ अपने अंडर आइज को, देन मैं अपने लोअर चिकबोन को भी ब्लेंड अच्छे से बेक कर रही हूँ, बिकॉज मेरी बहुत ऑयली स्किन है। अगर मैं बेक नहीं करूँगी, मैटिफाइंग इफेक्ट नहीं लाऊंगी तो बहुत जल्दी मेरा मेकअप क्रीज करने लगता है। मैंने आज प्राइमर भी नहीं लगाया, मैं भूल गई प्राइमर लगाना, बट गाइज इफ़ यू हैव अ प्राइमर यू शुड ऑलवेज यूज़ इट। बहुत गर्मी है तो आपका मेकअप बहुत जल्दी पिघल जाएगा, इसीलिए आप हमेशा प्राइमर लगाओ। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, मैं एले गर्ल का स्पाइस पैलेट यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर के लिए। उसका शेड बहुत प्यारा है, इंडियन स्किन टोन में बहुत ही प्यारा लगता है, सो बहुत अच्छा है। मैं दिखाना भूल गई इसका पैलेट, बट कोई नहीं, मैं लिंक उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एक क्लीन ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा डार्क है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बट थोड़े टाइम में वो अपने सेटल हो जाएगा। अब मैं अपना जो बेकिंग पाउडर है वो हटा रही हूँ अपने अंडर आइज से, बिकॉज बेक हो चुका है, अच्छे से मैट हो चुका है, सब क्रीज वगैरह नहीं आएंगी।
सो मैं उसको बस वही हटा रही हूँ। नेक्स्ट फॉर आई एम जस्ट कॉन्टोरिंग माई नोज़। मैं नोज़ कॉन्टोर नहीं करती हूँ गाइज, आज मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। आई थिंक मेरी नोज़ परफेक्टली फाइन है, जैसे होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद माई नोज़, बट आज मैंने कर लिया बिकॉज वाई नॉट, इतना अच्छा मेकअप चल रहा है तो कर ही लेते हैं। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लशर पैलेट, लाइक हाईलाइटर एंड ब्लशर पैलेट। इसका रिव्यू मैंने करा हुआ है, आप छाप चेक कर सकते हो। इसका हाईलाइटर बहुत अच्छे हैं। मैं इसका ब्लश यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से काम नहीं करते हैं बट आई डेंट हैव एनी मच ऑप्शंस। सो मैंने इसको एक वेट ब्रश में लिया एंड वेट ब्रश के साथ अच्छे से काम कर रहा था, मतलब जो पिगमेंट है इसका वो ब्रश उठा पा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वेट ब्रश के साथ यूज़ किया, तो मुझे इसका थोड़ा अच्छा लगा, इसका जो भी आउटकम आया, रिजल्ट आया, आई क्वाइट लाइक दैट। Yeah, next I'm using this makeup spray from Wet n Wild. I'm just applying it with the help of my sponge. मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था, I don't remember किसको देखा था, but yeah, she also used the same technique. जिससे she mentioned that जो हमारा स्पंज होता है ना, अगर हम स्प्रे उससे लगाए तो वो हेल्प करता है हमारे मेकअप को स्टे करने में, बिकॉज उसको दबाता है हमारे मेकअप को। सो या जस्ट डिड दैट, मतलब काफ़ी फ्लॉलेस इफेक्ट दिया है इसने मुझे। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अब स्टेक वर्की का ग्रीन आईलाइनर, जो कि बहुत ही प्यारा आईलाइनर है। मैं एक हल्का सा विंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज इट्स इंडियन मेकअप लुक, सो इंडियन में तो आईलाइनर इज़ अ मस्ट। सो बहुत ही प्यारा सा कलर है ये ग्रीन कलर, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे कपड़ों को और मेरे मेकअप को। अब मैं एक ट्रायंगल सा बना रही हूँ अंदर। आजकल फॉक्सी आई का बहुत ट्रेंड चल रहा है गाइस, मुझे नहीं आता इतने अच्छे से, ना मुझे टाइम मिल पाता है कि मैं सीख पाऊँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैंने आज अप्लाई करा है, प्लीज़ लेट मी नो कैसा लग रहा है। तो काजल आई एम यूजिंग दिस शैम्बोर का आईलाइनर काजल पेंसिल, बहुत अच्छा काजल है गाइस, मुझे अपने फैब बैक में मिला था ये। बट इफ़ यू वांट टू हैव बाय अ न्यू काजल, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 600 समथिंग का है ये, बट बहुत ही प्यारा काजल है, स्मज नहीं करता, 12 आवर्स तक बिल्कुल आपके आईलिड पे रहेगा, लाइक वाटर लाइन पे रहेगा। With this time eye makeup is 90% complete. The only thing which is left is mascara. अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, मेरा फेवरेट पार्ट है ये, लाइक आई वॉज जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग एंड एंजॉइंग मस्कारा टाइम। सो या आई एम यूजिंग दिस एसेंस का मस्कारा, वॉल्यूमराइजिंग मस्कारा है, बहुत ही प्यारा है, लाइक अपने फॉल्स लैशेस के ऊपर लगाओ एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। इट विल ऑल्सो गिव यू दैट इफेक्ट ऑफ लाइक सेलिब्रिटी वाला इफेक्ट जो आता है। बहुत ही अफोर्डेबल मस्कारा है, आई थिंक ये 250 रुपीज़ का मुझे मिला था फ्लिपकार्ट या नायका से, मैं इसका लिंक डाल दूंगी नीचे, आप चेक कर सकते हो। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस लिप पेंसिल फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, इसका शेड मुझे याद नहीं है, अगेन आई विल पुट इट इन द बॉक्स। एंड ये न्यूड शेड है, बहुत प्यारा है, लाइक बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है आपके लिप्स पे। सो आई एम जस्ट डूइंग इट, आई एम फिलिंग माई लिप्स विद दिस। एंड फॉर लिपस्टिक आई विल यूज लिपस्टिक फ्रॉम शुगर, वो भी मेरे फैब बैग में मुझे मिला था। आई जस्ट शो यू द प्लश क्रेम क्रेयॉन इसका नाम है एंड इसका शेड है बर्बन, मुझे याद है मैंने सिलेक्ट किया था। गाइज मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा ग्लॉसी है, मैं लेती नहीं इसको, बट मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक्स नहीं पसंद है। आई हैव इट सो आई हैव टू यूज इट, क्यों वेस्ट करूँ। सो या आई वॉज अप्लाइंग इट, बट मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी बिकॉज आई एम अ टोटल मैट पर्सन। जिस जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, आई थिंक मेरे साथ ही ऐसा है, मुझे मैट बहुत पसंद है। तो मैट के लिए आई एम जस्ट यूजिंग माई फेवरेट ऑल टाइम स्विस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड कैफे। सो मेरे हाथ पे भी लग चुका है, लाइक बहुत ही बुरा हाल है। या आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई लिप्स। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे इन तीनों का, लाइक द लाइनर, द लिपस्टिक एंड द लिक्विड लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा। सो आई विल बी ट्राइंग दीज हैक्स अ लॉट। सो आई हैव लाइक 10-12 शेड्स ऑफ दिस रेंज। सो मैं इसको और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी इस फॉर्मूला को। Yeah, so with this the look is complete guys. Thank you so much for bearing me for so long. Now let's get into the final look. So this is the final look I created. I really love the way it has turned out. I topped it up with a mang tika matching with my clothes and makeup. And मैंने अपने बालों को थोड़ा मैसी से लुक दिया था। मुझे ऐसा ही कुछ लुक था मेरे दिमाग में जो मुझे क्रिएट करना था, मैंने अपने कैमरा में से उतार लिया। Thank you so much for watching guys, really appreciate it. Please subscribe to my channel if you haven't already, it will mean the world to me. And I have also worn my dupatta. I hope you guys enjoyed the whole chitty chatty session. I'll see you in my next video.